Sound. So what is sound? Who can say? Anyone? Our sound is a form of energy which gives us sensation of hearing. So whatever that means, sensation in hearing, and this is a energy. Okay. Sensation of hearing, it gives sensation of hearing and energy. जैसे कि light is also a form of energy which gives sensation of vision. ये क्या देता है? हम लोगों को सेंसेशन ऑफ विजन देता है, बट ये साउंड क्या करेगा? सेंसेशन ऑफ हियरिंग देगा. ओके. हाउ दिस साउंड इज प्रोड्यूस्ड? How this sound is produced? As you all know that sound, अभी मैं जैसे तुम लोग को बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? मैं जो आवाज निकल रहा हूँ, that आवाज is reaching to you, that sound is reaching to you, but at the same time, if no particles are here, then my sound will not be propagated to you. So sound needs medium to propagate. Medium means either it may be solid, liquid or gas. कुछ भी चीज हो, अगर कुछ भी solid, liquid, gas means ये तीनों के अंदर क्या है? It is having some particles. अगर पार्टिकल्स नहीं रहेगा तो साउंड ट्रैवल नहीं कर पाएगा. जैसे कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम. अंडरस्टूड? साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि साउंड ट्रैवल करने के लिए हमको पार्टिकल चाहिए. पार्टिकल्स कैसे होगा? ये पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होगा. After the vibration only sound can travel from one place to another place. So now यहाँ तक are you clear? Yes, sir. Okay. Now suppose this is particles and this is air. Medium is air and it is having some particles. So if somebody is producing the sound, then what will happen to this particle? This particle will start vibration. Vibration होते होते वो क्या होगा? It will reach to this. After reaching this particle will again vibrate and it will propagate to this particle. Then what happen? This particle will again vibrate and produce to here. Means like this, one by one it is propagating, and here this particle will reach here. Again it will come back to this original place. When this particle after striking or colliding with another particle, it will come back to its own position. So this is known as the elasticity of the particle. अगर किसी पार्टिकल के अंदर अगर इलास्टिसिटी नहीं है, जाके फिर से अपना पिछले पोजीशन में आ जाएगा. अगर वैसे नहीं होगा तो साउंड हम लोग ट्रैवल नहीं कर पाएगा वहां से. तो इसलिए ईच एंड एवरी पार्टिकल शुड हैव इलास्टिसिटी इन नेचर, एंड व्हेन दीज आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट्स मूविंग इन ए टू एंड फ्रो मोशन. टू एंड फ्रो मोशन उसको मिलाने से क्या होते हैं? हम लोग का एक वेव क्रिएट होता है. जैसे पेंडुलम का उस दिन भी बताया था, पेंडुलम जब जाता है, वन इज टू मोशन, अनदर इज फ्रो मोशन. Similarly, this particle also producing two motion and fro motion, and they are making a wave, and that is your mechanical wave, and this wave is known as your longitudinal wave. So sound travel in a
लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? जैसे कि हम लोग का डिफरेंट टाइप का वेव होगा। सपोज इसमें क्रिस्ट एंड ट्रॉप बोथ आर इन सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसका फ्रीक्वेंसी सेम है, बट केवल आप बोलते हैं ट्रांसवर्सल वेव। जो कि लाइट ट्रैवल करेगा, लाइट ट्रैवलिंग है ट्रांसवर्सल वेव, बट साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव में जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब क्या है? नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसवर्सल वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। Can you find any difference between the wave? Can you find? दिखाई दे रहा है कुछ डिफरेंस? यहां पे देखो ज्यादा कंप्रेशन है, यहां पे देखो रेयरफ्रैक्शन है। Here again compression, here rarefaction, here again compression. तो एक longitudinal wave, your longitudinal wave and transversal wave. Longitudinal wave में there is no changes in frequency, but in longitudinal wave there is constant changes in frequency. You can find there is a constant changes in the frequency. So जैसे मैं बोला था पहले, suppose एक पार्टिकल है, पार्टिकल यहाँ पे अगर रहेगा, वो पार्टिकल क्या हो जाएगा? यहाँ पार्टिकल जब स्ट्राइक करके यहाँ तक जाएगा तो यहाँ पे धीरे धीरे जाता रहेगा। जैसे जहाँ पे कोलाइड होगा वहाँ पे कंप्रेशन क्रिएट होता है। ऐसे करके साउंड का पार्टिकल एक जगह से दूसरा जगह ट्रैवल होता है। इसको बोलते हैं प्रोपागेशन ऑफ साउंड। अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? सपोज दिस इज ए मिरर। एक क्या है? मिरर है। मिरर में जब एक लाइट जाता है, इंसिडेंट रे, it reflect back. Yes or no? Incident ray when passes through a mirror, it bounces back, and this is known as your reflection. इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे ही इसको रिफ्लेक्शन, एक इसका प्रॉपर्टी है, लाइट का प्रॉपर्टीज है, वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इट रिफ्लेक्ट मींस इट कम्स बैक टू इट्स अनदर पोजीशन after striking to a reflecting object. Similarly, our sound also reflect. Sound भी क्या होता है? Reflect होता है। तो sound कैसे reflect होगा? Same चीज, यहाँ पे मैं suppose आवाज दे रहा हूँ, यहाँ से sound produce कर रहा हूँ, ये sound जाके अगर किसी एक reflecting object के ऊपर strike होगा, strike होने के बाद वो भी फिर से यहाँ पे reflect होगा। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ तुम लोगों को, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सपोज वन हाउस इज देयर, हाउस में एक रूम है, यहाँ पे रूम 1 एंड दिस इज योर रूम 2। इन बिटवीन द टू हाउस देयर इज सम वेंटिलेटर। ये बोला सपोज एक वेंटिलेटर है, ओके, यहाँ पे वेंटिलेटर है और रूम 1 में सपोज सम वन इज प्रोड्यूसिंग साउंड। तो साउंड क्या हो जाएगा? ऑल डायरेक्शन में जाएगा। ऑल डायरेक्शन में जैसे साउंड जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ का साउंड विल पास फ्रॉम दिस वेंटिलेटर एंड इट विल रीच टू द नेक्स्ट पर्सन इन द सेकेंड रूम। तो वहां पे ऐसे होके आएगा साउंड। तो यहाँ पे व्हाट द फिनोमेना वी कैन ऑब्जर्व, साउंड इज यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। साउंड का क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, यहाँ पे साउंड रिफ्लेक्ट हुआ है। तो देखो यहाँ से एक बॉडी का आवाज गया है, जाके यहाँ से आया है। अनदर थिंग आई एम सेइंग, ये वाला समझ में आया? दिस वन हैव यू गॉट? ओके, नाउ सी अनदर वन। पहले तुम लोग पुराना मूवीज देखे होंगे, जो आसामीज मूवी हो या तुम्हारा जो हिली स्टेशन वाला मूवीज हो, हीरो हीरोइन हमेशा जाएंगे कहाँ पे? माउंटेन एरिया में जाएंगे और वहाँ पे एक
सपोज एक रोमांटिक सॉन्ग चलते रहेगा, ठीक है, वहां पे हीरोइन क्या करेगा, एक पहाड़ के ऊपर से हीरोइन चिल्लाएगा, चिल्लाने के बाद क्या होता है, वो आवाज फिर से रिफ्लेक्ट उनके पास जाता है। देखे हो कहीं पे? तो ये जो फेनोमेना होता है, ये फेनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बाय दिस माउंटेन अगेन कमिंग बैक, ये रिफ्लेक्शन बोलेंगे इको। क्या बोलेंगे? इको। तो इको कैसे होता है वो वाला भी बताता हूं। तो ये वाला चीज को मैं अभी डायग्रामेटिकली आई शो यू। नाउ सपोज दिस इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया है। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस में सपोज हियर आवर जय मंडल इज स्टैंडिंग, हु इज स्टैंडिंग, मिस्टर जय मंडल इज स्टैंडिंग। सो नाउ जय मंडल प्रोड्यूस्ड ए साउंड, जय मंडल ने साउंड प्रोड्यूस किया है। सपोज द डिस्टेंस बिटवीन द जय मंडल, जय एंड दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस और वॉल इज d। कितना है? d है। तो हम लोग को एक चीज याद करके रखना है, स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड। कितना? स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री एक रूम टेम्परेचर में हम लोग का स्पीड ऑफ साउंड कितना होता है, 340 मीटर पर सेकेंड होता है। एंड अगर टेम्परेचर वेरी होगा तो साउंड का स्पीड भी वेरी होता है। लाइट का स्पीड कभी भी वेरी नहीं होगा। लाइट का स्पीड, लाइट कैन ट्रैवल इन अ वैक्यूम बट साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन अ वैक्यूम। लाइट का स्पीड कांस्टेंट रहता है बट स्पीड ऑफ साउंड कैन वेरी। इसलिए वेरी होगा अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। 20 डिग्री सेल्सियस में इतना होता है। अगर टेम्परेचर वेरीज होता है तो अलग अलग होगा। क्लास 9 में तुम लोग पढ़े होंगे 330 दिया होगा, 330 मीटर पर सेकेंड। क्लास 9 के बुक में 330 दिया है, लेकिन क्लास 10 के बुक में 340, बिकॉज ड्यू टू द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ द साउंड वेरीज, इसलिए अलग अलग करके बताया गया है। सो जय ने यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस किया है और वॉल तक पहुंचा है। जय से वॉल तक इज हाउ मच किलोमीटर, हाउ मच डिस्टेंस, d डिस्टेंस। तो अगेन व्हेन जय स्टार्टेड फ्रॉम हियर साउंड, अगेन दिस साउंड अगेन ट्रैवल्ड द सेम डिस्टेंस, फिर से वो d डिस्टेंस ट्रैवल किया है। यस और नो? एंड जय के पास जाके 0.1 सेकेंड में जय हियर्ड द साउंड और द रिफ्लेक्टेड साउंड, रिफ्लेक्टेशन दैट इज इको, उसको जय को सुनाई दिया। तो अभी देखो साउंड गया, फिर से साउंड रिटर्न आया है, तो मतलब वो कितना कम डिस्टेंस कवर किया, डबल पर डिस्टेंस कवर किया कि नहीं साउंड जय को सुनने के लिए। और टाइम कितना लगा, 0.1 सेकेंड। यस, नाउ स्पीड इज इक्वल टू व्हाट वी नो दैट, डिस्टेंस बाय टाइम। क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय time. So distance is equal to what? Distance is equal to speed into time. Speed is equal to distance by time. तो यहाँ पे स्पीड कितना है, 340 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू टाइम इज व्हाट, 2d बाय 0.1 सेकेंड। सो 2d इज इक्वल टू 340 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 34 एंड d इज इक्वल टू 34 बाय 2 इज इक्वल टू 17 मीटर।
नाउ सी दिस कैलकुलेशन। सो इको प्रोड्यूस होने के लिए जय को अगर क्लियर इको सुनना है तो मिनिमम 17 मीटर होना चाहिए। अगर 17 मीटर से कम होता है तो हम लोग को इको क्लियर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल सी नाउ आई एम टीचिंग यू एंड यू कैन फील माई साउंड, माई वॉइस इज रोलिंग, थोड़ा सा गुनगुनाना आ रहा है कि नहीं, जैसे वीडियो ब्लरनेस आता है वैसे मेरा साउंड में भी थोड़ा सा इको टाइप का हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये रूम इट इज नॉट ऑफ टोटल 17 मीटर, दैट्स व्हाई क्लियर इको वी कैनॉट हियर एंड व्हाट एवर वी आर हियरिंग द रोलिंग साउंड दैट इज नोन एज योर रिवर्बरेशन। इसको क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशन बोलते हैं। जो हम लोग को साउंड अगर क्लियरली सुनाई नहीं देगा वो साउंड को रिवर्बरेशन बोलता है। रिवर्बरेशन मीन्स लेस देन 17 मीटर। अगर बंद कमरे में तुम लोग आवाज कर रहे तो आवाज गुनगुनाते रहता है, दैट आवाज इज नोन एज योर रिवर्बरेशन। अंडरस्टूड दिस वन? हैव यू गॉट? ओके, नाउ सी व्हाट आर द कंडीशंस फॉर इको। इको होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए? फर्स्ट वन इज योर मिनिमम 17 मीटर होना चाहिए डिस्टेंस। सेकेंड क्या होना चाहिए? जो तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट शुड बी लार्ज, रिफ्लेक्टिंग सरफेस should be large. Next, sound produced now sound produced by object should be large, means what? ये तीन चीज मेन होना चाहिए तुम लोग का। एक तो फर्स्ट 17 मीटर ऑफ डिस्टेंस होना चाहिए। सेकेंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, व्हाट एवर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज देयर टू प्रोड्यूस इको, दैट वन शुड बी लार्ज, and from where the sound is produced he or she have to produce a large sound, then only we can hear the clear echo, तभी हम लोग को क्लियर इको सुनाई देगा। अगर इससे अगर यहाँ से अगर कुछ भी चीज अगर डिस्टरबेंस होता है तो इको प्रोड्यूस होने के लिए भी हम लोग को डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। अंडरस्टूड दिस मच? हैव यू अंडरस्टूड? Okay, now see what are the uses of this echo. Echo का यूज कहाँ कहाँ पे है? Have you heard bats? Bats देखे हो? Have you heard? Yes sir. This is a natural prey. नक्चुरल मतलब क्या है? मूव्स एट नाइट। फॉर फूड, वो नाइट को घूमता है अपना खाना के लिए। कौन? बैट्स लोग। तो बैट्स अगर नाइट में इन डार्क कैन वी सी, हम लोग अंधेरे में दिखाई देगा क्या? No, we cannot listen. We cannot see any object in the dark night. But this bat moves at night by producing sound. ये साउंड प्रोड्यूस करेगा और जाएगा। तो साउंड जाके क्या हो जाएगा? सपोज यहाँ पे बैट उड़ रहा है, यहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्टर है, ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। अगेन दिस साउंड विल कम बैक टू द बैट एंड द बैट कैन हियर दैट साउंड। दिस साउंड इज नथिंग द रिफ्लेक्टिंग साउंड, इको। वो इको सुन के ही वो जाएगा और
अपना प्रे जहाँ पे मिलेगा, उसका खाना जहाँ पे मिलेगा, वो वहाँ पे जाके अपना खाना खा के फिर रिटर्न अपना घर तक पहुँच सकता है। सो बैट आर यूजिंग साउंड एंड दे आर यूजिंग द इको टू मूव एट नाइट फॉर देयर फूड। नेक्स्ट अनदर एग्जाम्पल, डॉल्फिन। डॉल्फिन्स भी क्या करते हैं, वो पानी के अंदर साउंड प्रोड्यूस करता है, वही साउंड से वो इको आता है, वो इको से ये डॉल्फिन भी अपना प्रे खुद ढूंढ लेते हैं, अपना फूड को खुद ढूंढ लेते हैं। एंड ब्लू व्हेल से बच जाते हैं, क्योंकि ब्लू व्हेल शार्क को डॉल्फिन को खा लेंगे। इसलिए जब इसका साउंड से पता चल जाएगा कि यहाँ पे बहुत बड़ा वाला एक ऑब्स्ट्रकल है, तो डॉल्फिन वहाँ तक नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि उसके सामने बड़ा वाला ऑब्स्ट्रकल है, मतलब खतरा है, वो उस डायरेक्शन में और नहीं जाएगा। ये वाला एक हो गया है। नेक्स्ट, हैव यू हियर्ड सोनार? सोनार सुने हो? सोनार का फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। गाजियाटा का एक मूवी है, देखे हो? एनीवन हैव you seen anyone that movie Gajieta? No sir. ये वाला बहुत बड़ा इंडियन हिस्ट्रीज मूवी है, इंडियन हिस्ट्रिकल मूवी है वाला गाजियाटा, तुम लोग देख सकते हो मूवी। ये मूवी में क्या होता है, सबमराइन। हैव यू हर्ड द सबमराइन? सबमराइन पता है? हाँ, वाटर के अंदर रहता है। यस, वाटर के अंदर रहता है सबमराइन, प्रोटेक्ट करते हैं हम लोगों को। यही सबमराइन है। गाजियाटा में जो सबमराइन यूज हुआ था, विशाखापट्टनम अगर तुम लोग जाओगे तो वाइजर में देखोगे इसका म्यूजियम बना के रखे हैं सबमराइन का, कस्तूरा बोल के नाम देंगे। इसमें क्या होता है, ये सोनार क्या करेगा, एक साउंड छोड़ेगा। ये साउंड सपोज यहाँ पे दूसरा शिप अगर है या दूसरा कुछ ऑब्जेक्ट है, दिस साउंड फिर से रिटर्न बैक आएगा, दैट इज इको। इको जब होगा, यहाँ से वो डिस्टेंस पता कर लेंगे, डिस्टेंस पता करके अगर ये लोग अटैक करना चाहते हैं तो उसी डिस्टेंस के हिसाब से अपना मिसाइल को टारगेट बना सकते हैं। गाजियाटा को भी अगर तुम लोग देखोगे तो सोनार का कैसे यूटिलाइज किए हैं वो चीज वहां पे पता चल जाएगा तुम लोग को। अंडरस्टूड? Yes sir. तो सोनार इज ऑल्सो one of the uses of our eco. Another thing, radar. radar भी साउंड प्रोड्यूस करेगा, इको आएगा। radar में भी क्या होता है तुम्हारा, इसका फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। ये रेडर के बारे में अगर तुम लोग को जानना है तो एयर फाइटर मूवी देखना, ऋतिक रोशन का। ऋतिक रोशन एंड अक्षय कुमार है शायद, ऋतिक रोशन का देखना है मूवी। ये मूवी में तुम लोग को ये वाला कहाँ पे मोस्टली यूज होता है, एयरक्राफ्ट, मोस्टली यूज इन एयरक्राफ्ट। यहाँ पे देखना कैसे ब्लॉकिंग करते हैं, कैसे टारगेट बनाते हैं। ये लोग भी क्या करते हैं, जैसे कि तुम्हारा जो एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट में उन लोग तो ऊपर कुछ भी पता नहीं चलेगा, उन लोग भी साउंड वेव छोड़ेंगे। साउंड वेव छोड़ने के बाद यहाँ पे अगर दूसरा एरोप्लेन है तो ये साउंड उसको डिटेक्ट हो जाएगा, या मिसाइल्स आते रहेगा, मिसाइल्स डिटेक्ट हो जाएगा कि इतना रेंज के अंदर there is someone is targeting us or some obstacle is there, by that this aircraft can move its direction. So these are the